اور سب سے پہلے اپنے خدا سے منت کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم کلام کو بھی سیکھیں، یاد بھی رکھیں اور اپنے عمل میں بھی لائیں. Father God, we are so grateful and thankful for many blessings that you have given to us. Blessing that we cannot even count. ہم منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کریں کہ کلام کا جو بیج آج بویا جائے وہ پھل لائے اور بہت ساری زندگیوں کو سیر کرے. ہم اپنے ملکوں کے لیے، دوسری دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ایک ٹرموائل میں ہے، مشکل میں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ظلم اور بربریت کا سامنا کرتے ہیں اور ناانصافی سے دوچار ہیں. آپ ان کی مدد فرمائیں اور ایسے وسیلے مہیا کریں کہ ان کو اس غلامی سے آزادی مل سکے. جو جیلوں میں ہیں اور تکلیفوں میں ہیں اور ناجائز کیسز میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کلام کہتا ہے کہ pray for those who are in prison like you are their fellow prisoners with them. تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اور ان کے خاندانوں کو تسلی عطا فرمائے. ہم منت کرتے ہیں کہ جو لوگ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو بھی آپ حوصلہ اور تسلی اور ان کی راہوں میں آسانیاں پیدا کریں. خداوند جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم سب کے اور باقی لوگوں کے لیے بھی منت کرتے ہیں کہ آپ ان سب کو اپنے کلام کی برکات سے نوازتے رہیں اور ان کا پیار اور محبت آپ کے ساتھ روز بروز بڑھتا رہے. جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کی بھی مدد فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں، اور جو ڈاکٹر اور جو ادویات وہ استعمال کرتے ہیں خداوند ان پہ بھی آپ کا کرم ہو. خاص طور پہ ڈاکٹروں کے لیے حکمت اور دانائی کی دعا مانگتے ہیں. ایک بار پھر ہم ان تمام گزارشات کو خداوند یسوع مسیح کے پاک ترین نام سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ دعا اسی کے نام سے ہے. آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اور اب پاس صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے خداوند نے جو کلام آپ کے دل میں رکھا ہے آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے. بہت شکریہ. آج فروری کی 8 تاریخ ہے اور سال 2025 ہے. میں آپ سب کو فیلوشپ آف بلیورز کی ہفتہ واری بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گزشتہ کچھ ہفتوں سے یوحنا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت پر غور کر رہے ہیں اور آج بھی اسی آیت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہماری جو اس معاملے میں جستجو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. اور آج میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں چند آیات ہیں جو کہ یاد کرانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں. پہلا ہے میتھیو چیپٹر 11 ورس 25. میتھیو 11:25 بہت مشہور آیت ہے، آپ کو زبانی آتی ہے لیکن یاد کرانا میرا فرض ہے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب لفظ سب جو ہے یہ بہت ضروری ہے. all میرے پاس آؤ. دعوت دیکھیے کن کے لیے ہے؟ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو اب اگر لوگ آئیں گے ہی نہیں آرام کیسے پائیں گے؟ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. تو
जिसका मतलब है तब तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो दो बातें कर दी, बोझ से दबे हुए बेशुमार बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर सो कंफ्यूज। तो उसी के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है। दूसरी आयत जॉन 7 वर्स 37, जॉन 7 वर्स 37। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, खुदावन यीशु मसीह खड़े हुए और पुकार कर फरमाया कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। उसमें भी आने की दावत थी, पहली आयत में भी और दूसरी आयत में भी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। तीसरी आयत, तो जो लफ्ज आपने अंडरलाइन करना है वो है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। पहले हमने बिलीव के ऊपर कुछ बातें कही थी, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। और फिर आज का जो खास लफ्ज आपको याद कराना है वो ये है कि मेरे पास आओ। और जॉन 6:35 भी देख लीजिएगा, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। उन्होंने लोगों ने जो खुदावंत को छोटी कश्ती में बैठकर खुदावंत की तलाश कर रहे थे, उन लोगों के अल्फाज सुनिए जरा। है खुदावंत, ये रोटी हमें हमेशा दिया करें, ये रोटी हमें हमेशा दिया करें। पहले पानी की बात की, प्यास की बात की, अब रोटी की बात करते। अब खुदावंत के अल्फाज सुन लीजिए। तो खुदावंत ने उनसे कहा, क्या फरमाया? जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, ये है अंडरलाइन करने वाला जुमला, जो मेरे पास आता है या आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। ये बहुत अहम बातें हैं। और चौथी आयत, मैं इनकी तशरीह नहीं कर रहा, सिर्फ आयतें शेयर कर रहा हूं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 40, जॉन 5 वर्स 40। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले खुदावन ने क्या फरमाया। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। आओ, मेरे पास आओ, और तुम मेरे पास नहीं आते। दोनों बातों का बैलेंस पेश कर दिया। और पांचवी आयत जॉन 11 43 44, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये कहकर के खुदावन ने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजरस निकल आ। He cried out with a loud voice, Lazarus, come out. किसके पास आना है? अपने खुदावन के पास आना है। The one who has become everything for us, we have to come to him. The one who has become everything to us, वो ज़ात पाक हमारे लिए सब कुछ है, उसके पास आना, अपनी मुश्किलात, अपने दुखों, अपनी तकलीफों, अपने मसाइल के साथ। खुदावन ने यह भी फरमाया था कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है। अच्छा, दरवाजा तंग है, कहते हैं दरवाजा चौड़ा है, और रास्ता कुशादा है। कौन सा वाला दरवाजा चौड़ा है? कौन सा वाला रास्ता कुशादा है, खुला है? जो हलाकत को जाता है, जो मौत की तरफ जाता है, और उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। अब आपको पता चल रहा है कि लोग क्यों नहीं खुदावन के पास आते, क्योंकि वो हलाकत वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं, उसमें आसानियां हैं, मुश्किलात हैं। लगता है कि खुदावन के लोगों को हमेशा मुश्किलात और मुसीबतों का सामना रहा है।
तो इसीलिए किसी ने कहा कि लॉर्ड, इफ दैट्स हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड, that they're always facing problem and difficulty, no wonder you don't have too many friends. सारी मुसीबतें, सारे अजाब, सारे दुख, सारी तकलीफें वो बर्दाश्त करते हैं। नबियों के साथ क्या हुआ, रसूलों के साथ क्या हुआ, कलीसिया के साथ क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, सोचने की बात है। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और जिंदगी को पहुंचता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। असल बात ये है। ये मैथ्यू 7 वर्स 14, मैथ्यू 7 वर्स 14। तो खुदावन ने तो ये फरमा दिया कि फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। जॉन 5:40, जैसे मैंने पहले कहा। वजह क्या है? वजह गुनाह और रूहानी अंधेपन का जाती अलमिया है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है, उसकी वजह से लोग खुदावंद के पास नहीं आते। तो हमें इनको कंडेम नहीं करना, क्योंकि वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट द जज। वी हैव टू रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम एज मच एज यू नो हाउ टू हेल्प। और हम जब हेल्प की बात करते हैं तो हमें पैसे का ख्याल आता है कि उनको पैसे दे दें। राइस क्रिश्चियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पिरिचुअल क्रिश्चियन यानी माली मदद भी करना ज़रूरी है, तो वो भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आगाज़ जो है, आप उनको खुदावंद के पास लाएंगे तो बहुत सारे मसले उनके ज़ाती तौर पर हल होंगे। आज जहालत क्यों फैली हुई है? और ना सिर्फ गिरजों में डांस होते हैं और लड़कियों को जिस तरह से यूनिफॉर्म पहना के गिरा रहे हैं और डांस किए जा रहे, ऐसे मस्जिदों में हो रहा है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसे ही मंदिरों में हो रहा है। तो ये डिजीज एक दूसरे को पहुंच रही है और रूहानी ब्लाइंडनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते और इसकी करेक्शन की हिम्मत नहीं रखते। उन्हें जी सानू की जो करेगा सो पढ़ेगा। अगर ऐसे ही होता तो ये जितने खतूत लिखे मुकद्दस पालूस रसूल ने, उनमें जो उनको झिड़कियां दी और जो खबरदार किया और ख़तरात से आगाह किया, आप पढ़ लें। उनके सारे गुनाहों को डिस्कस किया गया और बताया गया कि ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ना करते ऐसा, हम ही को तेने नहीं छड्डो पड़ा, जो कर दे आपे पड़ेगा। तो हमें इनकी तरफ भी इशारा करना चाहिए। एक और आयत याद करा देता हूँ, मैथ्यू 23 वर्स 37। मैथ्यू 23 वर्स 37। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। ये तो क्रिटिसिज्म खुदावंद की तरफ से हो रहा है। नहीं, खुदावंद ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे फिर ना लोग नहीं आएंगे। ऐसा कोई सबक कलाम पाक में मौजूद नहीं है। कितनी बार मैंने चाहा, खुदावंद फरमाते हैं, कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा करती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। जॉन 5, 39, 40 और 42 तक भी अगर पढ़ ले, सामरी औरत की गवाही है और आप सब उस गवाही से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं आपसे एक नहायती बुनियादी सवाल करता हूं आज, और आपको जवाब देना भी बड़ा आसान है। आर यू फैन ऑफ जीसस? आर यू फैन ऑफ जीसस? सिर्फ हाथ ही दिखा दें अगर आप हैं, वो जवाब देने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि फैन होना काफी नहीं है। वी मस्ट बी द फॉलोअर ऑफ जीसस। हम फिल्म स्टार को, शायरों को, मौसीकारों को के फैन होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, फैन ही होते हैं।
कुछ लोग उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन तस्वीर लगाने की हद तक और उनके प्रोग्रामों में जाने की हद तक यही फैन है। हम चर्च जाते हैं, कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, ये फैन कर लेते हैं ऐसे काम। But to follow and become the follower of Jesus is so crucial. And the basic demand that our Lord wants from you and me to be his follower. तो आई होप जवाब तो बहुत आसान था, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा फर्क है, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, आप ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। तो मैंने ये बातें आयात की रोशनी में आपके सामने रखी हैं। अब आइए उस बयान की तरफ जो मैंने कहा था कि 7 बातें आपको बताऊंगा। पिछली दफ़ा मैंने आपको पहली बात याद कराई थी। आई होप कि आपको वो बात याद है कि वो बात क्या थी। कि खुदावन ने हलाक होने वालों को कोई ऑइंटमेंट लगाने के लिए नहीं कहा था, कोई फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं कहा था कि आप इसमें ये डालो, खजूरें डालो, अदरक डालो, प्याज डालो, लहसुन डालो, और फिर इस जिसको सांप काटे उसके ऊपर लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? तो उसमें इंसानी मेहनत शामिल हो जाती, और उसमें इंसानी कावश जो है वो शामिल होती, और ईमान का पहलू और जो सबक सिखाया जाना था वो ना होता। और वो यही है कि लुक एट मी, बिलीव मी, जो ऊंचे पे लटकाया गया है उसकी तरफ देखना है। आज दूसरी बात, कौम बनी इसराइल को बियाबान में जख्मियों की खिदमत करने के लिए नहीं कहा गया था। हलाक होने वालों को, जख्मी होने वालों को उठा कर लाओ, मरहम पट्टी करो, उनको बचाओ, मदद करो, ये नेक काम है, नेकियां कमाओ, ये भी नहीं कहा गया था। अगर ऐसा हुक्म खुदा देते, जज्बाती तौर पर हलाक होने वालों के रिश्तेदारों को अपनी खिदमत करने का मौका मिलता और वो काम बड़ी खुशी से करते, और ये तरीका इलाज ज़्यादा अमली दिखाई देता और ये काबिल कबूल इलाज दिखाई देता, इससे तसल्ली मिलती और ये अक्ल को भी पसंद आता कि हमने कुछ किया है अपने अजीज़ों के लिए, हमारी मेहनत से हमें इनको एम्बुलेंस बुलाई, 911 को कॉल किया, 115 को कॉल किया, और हमने इनको अस्पताल पहुंचाया, इनकी मदद की, तब ये बच गए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए गहरे पानी में छलांग लगाने का क्या फायदा होगा? अगर वो छलांग लगाने वाला शख्स खुद तैरना नहीं जानता, ऐसा शख्स डूबने वाले को कैसे बचा सकता है? छलांग तो लगा दी, तैरना जानता नहीं, बंदा डूब रहा है। तो ये छलांग लगाने वाला जो जज्बाती तौर पर कि मुझे इसकी जान बचानी, मुझे, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम कैसे उसकी जान बचाओगे? मुमकिन नहीं है। जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरे को कैसे बचाएगा? Therefore, only God, only Lord Jesus is our Savior. ऐसी हालत में ऐसे शख्स दूसरों की मदद कैसे कर सकता है या कर सकते हैं? जो खुद हालत मौत में हो वो दूसरे मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकता है? आप जिंदा हैं, आपके पास कलाम है, आपके पास रूल कुद्दस आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में बसता है। आप खुदा से डरते हैं, वो कांपने वाला डरना नहीं, द फियर ऑफ द लॉर्ड जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी बात करता हूं। तो सारा क्रेडिट खुदावन ने किसी इंसान को देने से बाज रखने के लिए किया, एंड द ग्रेस अपॉन ग्रेस जिसको हम कहते हैं, उसका यहां पर कि बियाबान में जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पे लटकाया था, जरूर है
कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे लटकाया जाए। फिर भी आज बहुत सारे लोग इस फजूल उम्मीद के साथ खरायती कामों में मसरूफ हैं कि वो दूसरों को राहत और आराम देने से गुनाह के मोहलक वायरस से, खतरनाक वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, इतने लोगों को खाना खिला दो, इतनी नेकियां मिल जाएंगी, इतने लोगों को ये कर दो, ये हो जाएगा। तो अगर सारे काम इसी तरह से होते तो ये तो बड़ा आसान काम था, नेकियां कमा के जन्नत को हासिल करना। खुदावन ने तो इससे भी आसान तरीन काम कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, ना किसी को कत्ल करना है, ना किसी को आपने क्रिश्चियन जबरदस्ती बनाना है। आपने सिर्फ खुदावंत के पाक कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी में जो तब्दीली है उसकी गवाही देनी है, और वो चिराग जो आपके दिल में पाक रूह की वजह से रोशन है, लोगों को उस रोशनी में लेकर आना है जो दरअसल आपकी रोशनी नहीं है। बेशक हम दुनिया के नूर हैं, but in reality he is the nur of the world. We borrow the light and we shine that light in front of those people who are sitting in darkness. तो खैराती कामों में मसरूफ होने की राहत खतरनाक वायरस है। खुदावंद पर एतमाद, भरोसा, यकीन, लुक एट मी, कम टू मी, बिलीव मी, ये मरकजी नुक्ते हैं। गुनाह खुद उन लोगों को एक खतरनाक वायरस की तरह हलाक कर रहा है, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? खाना खिला के, नेकियां करके, कपड़े तकसीम करके, राशन तकसीम करके नेकियां नहीं मिलती। हम ये काम खुदावंद की मोहब्बत में करते हैं। वी डू दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एंगेज इन दैट, बट नॉट सो वी कैन गेट नजात। ये हमारा मकसद कभी भी नहीं होता और ना होना चाहिए। तो ये दूसरी बात आज आपके सामने रखी। अब जरा तीसरी बात, मैं इनको मुख्तसर कर रहा हूं ताकि इशारे कर दिए हैं बड़े मरकजी, तो आप देख लें कि हम इनसे क्या क्या बातें सीखते हैं। तो आप तीसरी बात की बारी है। तीसरी हकीकत जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि कौम बनी इसराइल से ये नहीं कहा गया कि तुम सांपों से लड़ने के लिए तैयारी करो, खुद मुकाबला करो इनका, खुद इनको मारो, इनको हलाक कर दो। ये तुम्हें काटते हैं, तुम इनको काट लो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर हमारे पास आज के कुछ चौधरी टाइप, लीडर टाइप लोग होते, जदीद लोग उस वक्त बियाबान में होते जो आज हमारे साथ हैं, तो वो लोग बुजुर्ग मूसा पर जोर देते, चीख चीख कर ये कह रहे होते कि हमें सांपों के खात्मे के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी चाहिए, और फिर हम इसके लिए फंड रेजिंग करें और फिर इसका एक मंसूबा बनाएं ताकि हम ज्यादा, ये एक दिल होकर, एक कमेटी होकर फिर हम इनका मुकाबला करें। सोसाइटी इंतखाब करके, मेंबरशिप फॉर्म बना के क्या कर लेते हो? कुछ भी नहीं। सोसाइटी का नाम क्या रखें, इसकी बात करते। सदर कौन होगा, खजांची कौन होगा, दफ्तर कहाँ बनाएंगे, वगैरह वगैरह, आप इन्हीं चक्रों में पड़ जाते तो कई महीने इसी में लग जाते। इतनी देर में सारे सांप काटते रहते, दुनिया हलाक हो जाती। और हर मुतासरा शख्स हजारों सांपों को मार डालना कहाँ की बात, कौन करता? अब इस सारी सांपों की लड़ाई के गुनाह का क्या मतलब था? ये बात सच है कि ये तरीका कि हम सोसाइटी बनाएं, फिर सांपों के खिलाफ
जिहाद करें, लड़ाई करें, जंग करें, मिलकर काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, एक दिल होकर काम करें, रिसोर्सेस को सही तरीके से लगाएं और एक लड़ाई का ऐलान कर देते। इससे क्या हासिल होता? नथिंग। हमें अपने जिस्म की तवानाई के लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाता। क्या वक्फे वक्फे से बेहयाई लड़ाई के खिलाफ हमारी सलीबी जंगों ने मुआशरे को बेहतर किया, और ना ही उन्होंने एक गुनाहगार को खुदावंद यीशु मसीह के पास आने में कोई खुसूसी तौर पर रहनुमाई की और मदद की। हमारा मिशन ये है कि किस तरह से हम लोगों को खुदावंद के पास लेकर आए। द हार्ट ऑफ द गॉस्पल क्या है? कभी आपने सोचा व्हाट इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पल? हर वो आयत जो आपकी पसंदीदा है और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, इन माई ओपिनियन दैट इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पल। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेरी समझ में आता है, जिससे मैंने बहुत फैज पाया है, वो ये है कि मेरी जगह पर गुनाह मैंने किया, कसूर मैंने किया, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, वो ज़बूर के हवाले से मेरी सजा किसी और ने अपने ऊपर ले ली और मुझे आजाद कर दिया, मुझे बरी कर दिया तमाम गुनाहों से और अबदी जिंदगी दे दी। दैट इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पल। और इस हार्ट ऑफ द गॉस्पल को हम इन लोगों तक पहुंचाना है। कमेटियां भी बनाएं, काम भी करें, लेकिन मेडिसिन दे के बीमार लोगों को तवाना करके, सेहतमंद करके जहन्नम ना जाने दें। उनको खुदावंद की तरफ आने का रास्ता जरूर बताएं। अगर वो नहीं बताते तो ये बयान मुकम्मल नहीं होता। अब चौथी बात जो आपको याद करानी है, खुदा ने कौम बनी इसराइल से सांपों के काटने से मरने वालों से शिफा देने की कोई फीस वसूल नहीं की, कोई चंदा नहीं मांगा, कोई मुआवजा नहीं मांगा। वाकई ही बदले में कुछ नहीं मांगा। मैं इतना जोर देकर ये बात आपको याद करा रहा हूं। मुफ्त इलाज, सिर्फ पीतल के सांप की तरफ देखो, लेकिन इतने पैसे लेकर आओ। मैंने कुछ लोगों को भेजा है एक क्लिप, बड़े मशहूर पादरी का, वो टीवी पे बहुत एक्टिव है, और वो कहता है कि आपको पता है कि खुदावंद की दूसरी आमद क्यों नहीं हो रही? दूसरी आमद इसलिए नहीं हो रही कि आप वो पैसा नहीं देते चर्च को जो आपको देना चाहिए। ये रुकावट है। और जब आप पैसा देंगे चर्च को, गॉड द फादर विल से टू जीसस, गो गेट देम, एग्जैक्ट वर्ड। आपको कुछ लोगों को भेजा वीडियो, देखिएगा। ये हाल है हमारा। पैसा लाओ, फिर देखो क्या खुदा मौजे करता है। और यही है वो जिसको हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के प्रीचर कहते हैं। तो हमें इस बात को बहुत याद रखना चाहिए कि कौम बनी इसराइल से कोई चंदा, कोई हदिया, कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ देखने की दावत दी, जो आसान तरीन इलाज था। अगर फजल की कीमत, हदिया और चंदा वसूल किया जाए तो फिर वो फजल नहीं रहता। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, अगर फजल की कीमत वसूल की जाए तो फिर वो फजल नहीं रहता। अंजील पाक ने मुफ्त फजल की बातें की हैं, फ्री गिफ्ट, जिसको हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो देता है। जो डिजर्व नहीं करता उसको ही देता है। कलाम पाक इंसान के गुनाह, बदकारी का जिक्र करता है।
नेकियों का जिक्र उनकी नहीं करता, क्योंकि एक भी नेक नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं, नॉट इवन वन। ये कलाम का बयान है। तो जो लोग गुनाहगार लोग हैं, अनसेव्ड लोग हैं, कलाम पाक में खुदा ने बार बार ईमान ना लाने वालों को, ईमान ना लाने वालों को उनकी हौलनाक हालत और गुनाह की सजा का जिक्र फरमाया है। गुनाहगार लोगों को नजात दहिंदा की अशद जरूरत है, उनको आगाही की जरूरत है, ताकि वो सलीब के ऊपर देखें, उस मोहब्बत को देखें जो अजली मोहब्बत है और जो इतनी भारी कीमत अदा कर दी गई है, और हमें इसके लिए कुछ और नहीं करना मासवाए ट्रस्ट हिम, बिलीव हिम, यकीन करो, ईमान लाओ, मेरे पास आओ। तो मैं जो शुरू में आपको बताता हूं, मेरी नजर में आप कुछ सोचते होंगे कि शायद ये इसका मजमून से क्या वास्ता है। इससे बहुत वास्ता है। तो दो बातें हमने कर ली हैं, बिलीव मी, कम टू मी। तो गुनाहगार लोगों को नजात दहिंदा की अशद जरूरत है, और जो उनको अता की जाएगी, गिफ्ट की जाएगी, बगैर किसी मुतालबे के। नजात दहिंदा ही हमारी सजा का मुतबादल है। ही इज द सब्स्टिट्यूट फॉर अस। ये फिदवी है, कुर्बानी देने वाला फिदवी है, मुतबादल है, हमारा सब्स्टिट्यूट है। ये राज इतना बड़ा और इतना पुरसकून है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। चर्चेज में जब हम इबादत करने जाते हैं तो पासबान कलाम पाक की तिलावत करने के बाद लोगों के सामने ये पुकार पेश करता है कि अजीजों, हमें दोबारा खुदा से रिश्ता जोड़ना है, या जोड़ना चाहिए दोबारा। सोचिएगा। कुछ और पासबान ये ऐलान करते हैं कि आप अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दें। किनको? जो पहले ही क्रिश्चियन हैं, जो पहले ही कलाम से, फजल से, नजात से वाकिफ है। बार बार उनको यही हफ्ता ब हफ्ता सबक दिया जाता है, गिव योर हार्ट टू जीसस। ये ऐलान भी किस कदर दुखी ऐलान है। हम खुदावंद मसीह के कुछ देंगे जिसके बदले में खुदावंद हमें कुछ देगा। You give something to him, he will give something to you। ये तो कारोबारी दुनिया हो गई। खुदा गुनाहगारों से कुछ भी लेने का मुतालबा नहीं करता। Come to me, believe me, follow me, put your trust in me। बल्कि खुदा तो ये चाहते हैं कि आप सब, हम सब खुदा के अजीम तरीन, पाक तरीन तोहफे को जो मुफ्त मिलता है अक्ल की वजह से, जिसको हम हासिल करने के लायक ही नहीं है। हमें तो सजा मिलनी चाहिए थी, तो हमें सजा मिलने की बजाय हमें माफ कर दिया। हम तो पहले ही हालत मौत में थे। अब इन सब बातों के बावजूद हमें बचाने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा है। तालीम तो हमारी ये है, हमें खुदावंद मसीह को, सलीबी कुर्बानी को, ऊंचे पे चढ़ाए जाने वाले को देखना है हालत ईमान की सूरत में। अपने किसी नुस्खे पे, अपने किसी कर्तव्य पे फख्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसा मेथड गढ़ने की जरूरत है कि ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर लो, फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो आपकी निजात होगी। तरीके दो हैं, एक इंसान का बताया हुआ तरीका, एक खुदा का बताया हुआ तरीका। आप किस तरीके पे अमल करके बिलीव मी,
ट्रस्ट मी के पास नजात हासिल करने के लिए आते हैं। नजात आपकी हो जाती है जब आप खुदावंद पर मुकम्मल तौर पर सच्चे दिल से कबूल कर लेते हैं। 2 डाकुओं की मिसाल याद करा देता हूं। क्या हुआ था? जो डाकू अपील करता है, दरखास्त करता है कि खुदावंद जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखिएगा। यानी एक मुजरम की सजा पाने वाले को मरकजी सलीब पर, सेंट्रल क्रॉस पर लटके हुए शख्स से ये कहना कि when you return in your kingdom, that means he recognizes he is the king. उस हालत में भी तख्त पर नहीं है, अपनी ग्लिटरी रोप में नहीं है, कोई इधर उधर बड़े लोग नहीं खड़े हुए आपकी हिफाजत के लिए। He is not in his palace, just like he is with the criminal, consider criminal। और क्रॉस पे लटके हुए शख्स को बादशाह की सूरत में देख लेना, जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उसकी हीलिंग हो जाना, आंखें खुल जाना, दिल खुल जाना और अकीदा आ जाना, रिकॉग्नाइज करके यकीन कर लेना और दरखास्त कर देना, ये ईमान की शर्त है। ना बपतिस्मा हुआ, ना चर्च मेंबरशिप दी, ना उसने कोई कमिटमेंट कार्ड भरा मैं इतने पैसे दूंगा हर महीने, ना किसी बजट का हिस्सा। आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ना कोई दाय की दी, ना कुछ किया, डायरेक्ट मेरे साथ फरदौस में होगा। ये मुफ्त है, ईमान लाने वालों के लिए है, यकीन वालों के लिए है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को याद रखें। जितना कहा गया है आप उसे इतना ही समझें और फजल की अजीम और मुफ्त बख्शिश को और कोई सवाल करके अपनी सोच को अव्वलियत ना दें, अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं कि ये सिर्फ सुनने से कैसे हो जाता है, ये सिर्फ ईमान तो सुनने से ही पैदा होता है, ये सिर्फ देखने से कैसे होता है। ईमान तो देखने और सुनने और ईमान लाने से ही ऐसा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से, खुदा के मुंह से, बिकॉज वो कलमा है, ही इज द वर्ड, वो कलाम है। तो ये फजल की अजीम और मुफ्त बख्शिश को और कोई सवाल करके अपनी सोच की अवलियत को हासिल ना करें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सादा तरीका है, सादा पैगाम है, ना हीरे, ना जवाहरात, ना ताजमहल, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 5वीं बात, ये भी वो हकीकत है जो हमें हमेशा याद रखती है। They were not told to pray to the serpent। कौम बनी इसराइल से ये मुतालबा नहीं किया गया कि पीतल के सामने घुटने टेको और गिड़गिड़ा के चीख चीख के दुआएं मांगो, फिर तुम बच जाओगे। ऐसी तजवीज कलाम पाक की नहीं है। या अपने घुटनों के बल होके नंगे पांव ये पहाड़ पे चढ़ो ताकि तुम जख्मी हो, तुम्हारा खून निकले, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, ये तरीका नहीं है। या पानी में खड़े हो जाओ, एक टांग ऊपर करो और यहां से एक कोई चीज डालो और दूसरी तरफ से निकालो और हाथ ऊपर करके खड़े रहो समंदर में, तो इससे तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। या गंदे पानी में नहा लो और ह्यूमन वेस्ट खाओ और ह्यूमन वेस्ट पियो, तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। बड़ा मेला हो रहा है इस वक्त
इंडिया में, अगर आपने देखे होंगे तो उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। कुछ और मुबश्शिरीन जो इंजील सुनाते हैं अपने सुनने वाले लोगों को ये हदायत देते हैं कि उन्हें किसी पहाड़ पर जाना है, वहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ हम जाके टेंट लगाएंगे। वहाँ जाकर खुदा से बड़े जोश और जज्बे से चीख चीख कर बुलंद आवाज़ों से खुदा से बात करेंगे। और चूंकि वो ऊंचाई पर है और ट्रैफिक का और लोगों का और बत्तियों का और ये कोई शोर नहीं होगा, खुदा को हमारी आवाज़ आसानी से सुनाई देगी। तो तब खुदा आपको, सिर्फ आपको, जितने में जैसे मैं कह रहा हूं करोगे तो सिर्फ खुदा आपको माफ करेगा। जो खैमे में नहीं जाएगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा, वो निजात नहीं पाएगा। ऐसे मशवरे देने वाले ये भी बताते हैं कि जब आप अंदरूनी तौर पर अंदर से मर चुके हों तो फिर आप मेरी बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाओगे। When you are dead inside, then you will believe me. लोगों को डरा डरा के खुदा से डराते, कब्र के अजाब से डराते, जहन्नम के अजाब से डराते। कहां की बातें करते हो? ये बातें हकीकत हैं, लेकिन ये खुदावन के पास लाने की बातें। No understanding of his love, no explanation of his sacrifice, no invitation, come to me and I will give you rest. Trust me, believe me, follow me. और फिर जब वो चीख चीख कर बातें करते हैं तो खुदा से तुम्हारी बहुत लंबी लंबी बातें सुन ली जाती हैं और तुम्हारे ज्यादा बोलने से और ज्यादा सुनी जाएंगी। जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और कलाम क्या कहता है? तुम्हारे मांगने से पेशतर ही वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। खुदा बहरा नहीं है कि सुन नहीं सकता। चीखते क्यों हो? Is your God dead that you are screaming so much and dancing so much? कि हाजिर हो जा। शैतान है वो या जिन है कि वो हाजिर हो जाए? He is present with you all the time, even when you are dead in terms of sleep. He is there with you. कैसी तालीम है ये? पराए करम, बड़े हौसले से कलाम पाक की रोशनी में मेरी बातें सुनिए और गौर फरमाइए। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूं जो हमारे लिए बहुत अहम हैं। और अगर ये बेहतर जिंदगी के मुतलाशी जो तलाश करना चाहते हैं, बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ, अपने रहनुमा पासबान की इस बात पर यकीन करते हैं, तो हमने दुआ की है। अब बीमारी दुआ के बाद हमारी रूहानी माफी भी हो जाएगी। तो फिर ऐसा करने वाले बड़ी खुशी महसूस करते हैं और थोड़ी देर के लिए हल्के दिल से कुशादा रोड पर, ब्रॉड रोड के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये गैर मुतज़ल्ज़ल किस्म का रास्ता है और हमें इनकी हालतों पर रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। उनकी हालत अपनी आखिरी हालत से ज्यादा खराब है, पहले से भी बदतर हो जाती है। हमें खुदा में ईमान के लिए मुतबादल तो सब्स्टिट्यूटिंग प्रेयर की गलती नहीं करनी चाहिए। किसी और तरीके से हमें दुआ करके हासिल नहीं करना है। हमें खुदा पर ईमान लाना है। दुआ तो उसका हिस्सा है। Faith come first, trust come first, understanding his sacrifice come first, wholeheartedly believing in him is first, and it is free. You don't have to do much
about that. तो अब यहीं पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, वरना टाइम बहुत हो जाएगा, तो ताकि हमारे पास कुछ टाइम हो